Hello dears, what did we discuss in last lecture? Okay. हाँ, उसमें क्या क्या किया हमने? Capitalist economy and socialist economy has been already discussed. What are the main features of capitalist economy? Capitalist economy में हाँ और that's main motive is profit और they believe in privatization, they believe in competition. There is too much efficiency. Good quality products are given to the customers. Customers have enough choice to choose the product. Producers too have enough choice. There is nobody to regulate them. Or हाँ, very good. New innovation, research वहाँ पे होती है. और socialist economy, where does the capitalist economy find its roots? It finds its roots in the classical economics, especially in the writings of Adam Smith, because Adam Smith had already told us that there must be laissez-faire economy, an economy where there is least intervention of the government. उसी पे हमारी capitalist economy आज की based है. फिर socialist economy के बारे में थोड़ा बोलो. हाँ. So socialist economy finds its roots in the writings of Karl Marx, great German philosopher. What are the names of two important books written by Karl Marx? Das Kapital and Communist Manifesto. Socialist economy, where the means of production are collectively owned by the society and by the government. Social welfare remains the main motive of socialist economy. है ना? तो यहाँ पे लेकिन socialist economy है तो ये it is pro poor, pro people, because that is why capitalist economy was criticized by the Karl Marx. He said that capitalist economy is like a vampire that sucks the blood of poor people. ठीक है ना? We need something that will protect poor people. Otherwise, there will be glaring inequalities in the income levels if we will follow capitalist model. One section of the society will become too much rich and other section of the society will get exploited. So we have to come out of this capitalist model. उसने बोला socialist model. या सोशलिस्ट मॉडल इज गुड. यहाँ पे पोर जो है उनका वेलफेयर का सोचा जाता है. बट नेगेटिव एक चीज यह है, गवर्नमेंट का बहुत रोल रहता है, उसकी वजह से इनएफिशिएंसी हो जाती है, करप्शन हो जाता है ना. वहां पे कंप्लीट फ्रीडम है, कंपटीशन है. जो जितना मेहनत करता है इन कैपिटलिस्ट सिस्टम उसको उतना ज्यादा रिवॉर्ड मिलता है, उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलता है. ऐसा नहीं है सोशलिस्ट में. यहाँ पे कम मेहनत करने वाले बंदे को गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलेगा, वो आगे जाता है. ज्यादा मेहनत करने वाले बेचारे को सपोर्ट कभी कभार नहीं मिलता, वो पीछे रहता है ना. सम ऑफ द प्रोडक्ट्स व्हिच आर नॉट ऑफ गुड क्वालिटी बट दे गेट बेकिंग फ्रॉम द politicians, those are promoted, and some of the products of good companies which have good quality, they don't get backing from political system. उनको सपोर्ट नहीं मिलता है, वो बेचारे पीछे रहते हैं. So that leads to inefficiency in this socialist economy. When there is inefficiency, that means economic growth and economic development in this economy follows. इसमें economic growth and economic development follow होती है. वही हमने देखा मेरे dears from 1950 to 1990 almost. इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज्यादा सोशलिस्ट टिल्ट था. We had too much government control, too much protection from the government. तो हमारी जो ग्रोथ रेट रही इन सालों में, ये जो 50 साल है, growth rate was around 4%, 3.5% to 4%. That used to be called as Hindu growth rate. बहुत कम growth rate थी हमारी. Other economies were growing very fast. प्रॉब्लम ये थी कि हम ज्यादा प्रोडक्शन दे रहे थे अपनी इंडस्ट्रीज को, ठीक है ना, जो हमें अपने प्राइवेट कैपिटलिस्ट थे. बिकॉज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में देयर इज कंप्लीट फ्रीडम. Anybody can export anywhere where it wants to export. Anybody can import from anywhere wherever it finds its raw material at least cost. ऐसा नहीं है सोशलिस्ट में. यहाँ पे बिजनेस वाले को लग रहा है मुझे अपना इंपोर्ट लाना चाहिए चाइना से, लेकिन इसको गवर्नमेंट बोल रही है हमारी रिलेशन नहीं है चाइना के साथ अच्छी, आप वहां से नहीं ला सकते. अब बिजनेस बेचारा प्रोग्रेस करेगा या पीछे जाएगा? ये पीछे जाएगा. इसको मजबूरन अब साउथ अफ्रीका से लाना है कोई आइटम. समझ आई ना बात? तो हमारे जो प्लानर्स थे टिल 1980 वी वर टू मच अफ्रेड. हम ओपन अप नहीं कर पा रहे थे अपनी इकोनॉमी को. तो देयर वर सम ऑफ द इकोनॉमिस्ट्स हु वर सेइंग दैट वी नीड टू गो टुवर्ड्स कैपिटलिस्ट मॉडल. हमें ओपन करना है अपनी इकोनॉमी को, हमें एक्सपोर्ट्स अपने बढ़ाने हैं, हमें इंपोर्ट ज्यादा से ज्यादा लाने हैं. अदर इकोनॉमिस्ट्स बोल रहे थे नहीं, वंस वी विल ओपन अप, जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, जो जायंट कंपनीज है यूएसए की, बड़ी इकोनॉमीज की, दे विल
ग्रैब होल मार्केट ऑफ और स्मॉल इंडस्ट्रीज, जो हमारे पास स्मॉल इंडस्ट्रीज है। हमारा अडानी क्या है यूएसए के बिजनेसमैन के सामने? कुछ नहीं है, ठीक है ना। जो इंडस्ट्री एक है यूएसए की, जितनी उनकी टोटल टर्नओवर है ना, उतनी हमारी सारी इकोनॉमी का टर्नओवर है एक कंपनी जो है यूएस की। समझ आ रही है बात? तो वी आर वेरी मच अफ्रेड, अगर हम ओपन अप करेंगे अपनी इकोनॉमी को, टुवर्ड्स कैपिटलिस्ट सिस्टम जाएंगे, मे भी हमारी सारी इंडस्ट्रीज का मार्केट खाएंगे वो। समझ आई बात? तो हम बहुत डरते थे, लेकिन फिर 1991 में हमने क्या किया? इन 1991 वी फॉलोड एलपीजी है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिखना नहीं, बस समझना, अभी लिखने की ये आगे हमें पढ़ना है प्लानिंग में, जस्ट टू अंडरस्टैंड सोशलिस्ट मॉडल। So we went for liberalization, privatization, globalization. Liberalization means complete freedom. Liberty means giving complete freedom to the individual, जो पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं। प्राइवेटाइजेशन, प्रमोट प्राइवेट सेक्टर, जिसको अभी तक गवर्नमेंट बोल रही थी आप यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो, इनको यहाँ से इंपोर्ट नहीं ला सकते थे, उन पे बहुत टैक्सेस लगाते थे, उनको बोलते थे आपको लाइसेंस होनी चाहिए, यार इसको थोड़ा कम करेंगे। ग्लोबलाइजेशन, लेट्स बी लाइक वन फैमिली इन होल वर्ल्ड, ठीक है ना। तो हमने अपने बिजनेस पर्सन को थोड़ा फ्रीडम दी टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो उस टाइम 1991 में द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री वाज डॉक्टर मनमोहन सिंह। ही वाज एन इकोनॉमिस्ट, ही न्यू कि हम थोड़ा प्रॉब्लमेटिक चल रहे हैं, बाकी इकोनॉमी 3 ग्रो हो रही है, हमारी इकोनॉमी खाली 4% ग्रो कर रही है। रीजन ये है कि हम ज्यादा अपनी इकोनॉमी को ओपन अप नहीं करते हैं, हम अपने प्राइवेट पर्सन को ज्यादा फ्रीडम नहीं दे रहे हैं, है ना। तो उसने बोला let them export wherever they want export, let them import from which countries they want to import। इससे क्या होगा? ये इकोनॉमिस्ट्स बोल रहे हैं कि बाहर वाली बड़ी जायंट कंपनीज इनका मार्केट खाएंगे, लेकिन खाते खाते ये भी तो कुछ सीखेंगे ना। एज लॉन्ग एज यू विल गिव टू मच प्रोटेक्शन टू योर चाइल्ड, वो कभी बेचारा बोल्ड नहीं होता है ना। सुशन पाइन जगन पड़ता है खड़ा किसान, वंस यू गिव कंप्लीट फ्रीडम टू योर चिल्ड्रन, तब वो बेचारा मेहनत करता है, जब उसको ठोकरे लगते हैं ना मार्केट में, तब वो अच्छा इंसान, पुख्ता इंसान बनता है। Same is with our industries. If India will protect them all along a socialist model, they will never become mature. They will never think of giving competition to US economies. Once we will open up, their products will come here. They will work. They will work day and night. ये भी कोशिश करेंगे उनके साथ compete करने की, उससे हमारी इकोनॉमी को फायदा आएगा। चलो 2 साल के लिए, 3 साल के लिए उनके प्रोडक्ट्स यहाँ पे बिकेंगे, वो मार्केट खाएंगे, लेकिन 3 साल में वो इनोवेशन साथ लाएंगे, हम भी सीखेंगे वो कैसे ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये मशीन कैसे बन रही है, ठीक है ना। वो यहाँ आएंगे कुछ करने, हमारे इंजीनियर्स यहाँ पे सीखेंगे। अब अगर हम कभी उनको अलो ही नहीं करेंगे तो हम कभी सीखेंगे ये नहीं। They had paid for us. So that was a very bold decision taken by our planners in 1991. उसने हेल्प किया हिंदुस्तान को। After 1991, you see Indian growth rate peaked very fast. हमने 7% growth achieve की. We achieved 8% growth rate during 2000, 2004, 2007. The reason was only हमने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया। वो लिबरलाइज दैट मींस वी मेड इट टुवर्ड्स कैपिटलिस्ट सिस्टम। हमने थोड़ा ओपन अप किया इसको, हमने बोला कंपटीशन को मौका देंगे, जो जितनी ज्यादा मेहनत करेगा, let them earn the profit. While earning the profit, they will progress, they will work more. While working more, they will hire more laborers. Once they will hire more laborers, our unemployment will come down, our poverty will come down. समझ आई? तो वो पॉजिटिव्स है उसमें भी, और गवर्नमेंट की थोड़ा नजर होनी चाहिए, वो भी बहुत जरूरी है। सो हमारी जो आई वी हैव रिटन ऑलरेडी फीचर्स ऑफ सोशलिस्ट मॉडल एज वेल एज कैपिटलिस्ट मॉडल। तो इंडियन इकोनॉमी एक मिक्सड इकोनॉमी है। मिक्सड इकोनॉमी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें लिखने हैं, वी विल मूव फॉरवर्ड। मिक्सड इकोनॉमी, तो हमारी अपनी इकोनॉमी जो है दैट इज द मिक्सड इकोनॉमी। ये बात समझ आई? हाँ, इस पे हम इंशाल्लाह आगे भी बात करेंगे, वंस वी विल गो थ्रू इकोनॉमिक प्लानिंग, नीति आयोग, तो तब मैं ये सारे पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करूंगा। मिक्सड इकोनॉमी, सी मेरे डियर्स, मिक्सड मीन्स मिक्सचर, है ना। तो मिक्सड इकोनॉमी हैज positives of both socialist economy as well as capitalist economy। जो कुछ अच्छे अच्छे फीचर्स कैपिटलिस्ट सिस्टम के हैं वो इसमें पाए जाते हैं, जो कुछ अच्छे अच्छे फीचर सोशलिस्ट सिस्टम के वो इसमें पाए जाते हैं। तो हमने, हमारे जो लीडर्स थे, once we achieved independence, at that time they were great thinkers। It's not like today's leaders, जो आज के पॉलिटिशियंस, इनको ज्यादा नॉलेज नहीं है, इट इज बिकॉज ऑफ मनी दे आर बीइंग प्रमोटेड। लेकिन देन who were the founding fathers of our constitution, they were educated people। भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, उनके पास बहुत नॉलेज थी। बाल गंगाधर तिलक, मोस्ट ऑफ देम हैव बीन लायर्स, मोस्ट ऑफ देम हैव बीन जर्नलिस्ट्स। पीएचडी 4-4 सब्जेक्ट्स में किया है भीमराव अंबेडकर ने। तो उनको पता था कि हमारे लिए क्या ठीक रहेगा हिंदुस्तान के लिए। ना तो ज्यादा सोशलिस्ट, हम बोलेंगे वेलफेयर वेलफेयर, थोड़ा तरक्की भी करनी है, इकोनॉमी के लिए तरक्की भी जरूरी है। अब कैपिटलिस्ट की ओर जाएंगे तो गरीब बेचारे मारे जाएंगे, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ पोर हो जाएगा। हम दोनों को साथ साथ देंगे, ठीक है ना। सो मिक्स्ड इकोनॉमी मींस एन इकोनॉमी वेयर, इट मींस एन इकोनॉमी
means and economy were the positive characteristics of both characteristics या features positive characteristics या features of both capitalist as well as socialist economy are present. तो इसमें दोनों इकोनॉमी सोशलिस्ट इकोनॉमी एज वेल एज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के फीचर्स पाए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं मेरे डियर्स मिक्स्ड इकोनॉमी. दैट मींस इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मैन मोटिव इज प्रॉफिट, इन सोशलिस्ट इकोनॉमी मैन मोटिव इज वेलफेयर, इन मिक्स्ड इकोनॉमी देयर बी ब्लेंड ऑफ बोथ. थोड़ा प्रॉफिट भी, प्राइवेट पर्सन को प्रॉफिट भी मिलना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट भी रहेगी जो वेलफेयर ऑफ द पीपल के बारे में सोचेगी. तो उसको गरीबों का भी सोचना है, ठीक है ना. कैपिटलिस्ट में इन द कैपिटलिस्ट सिस्टम यू वोंट सी गरीबों को देंगे सब्सिडाइज्ड गैस सिलेंडर्स. ये गैस सिलेंडर अगर श्रीनगर में किसी बंदे को मिलता है 1200 रुपए में, लेकिन मे भी हमारे बारामूला डिस्ट्रिक्ट में बेचारे को गवर्नमेंट दे दे खाली 400 रुपए में, ठीक है ना. बिकॉज द गवर्नमेंट मेन मोटिव इज टू प्रोटेक्ट दैट पोर. उसको वेलफेयर चाहिए उस गरीब का, वो बेचारा एफोर्ड नहीं कर सकता 1200 रुपए में. तो हमें पता है कि गरीबी है हमारी कंट्री में, हमें सब्सिडीज देनी है. दिस इज नॉट इन कैपिटलिस्ट सिस्टम. वो तो प्रॉफिट पे काम करेगा. तो वी हैव हियर इन इंडिया प्राइवेट पर्सन को हाई रेट्स पे मिलेगा जिनके पास उतनी दौलत है, जो इतने अमीर है, लेकिन जो गरीब है उनको प्रोटेक्ट भी किया जाता है. समझ आई ना. सो प्रॉफिट एज वेल एज वेलफेयर विल बी द मोटिव इन मिक्स्ड इकोनॉमी. यहाँ पे प्रॉफिट भी होता है और वेलफेयर भी होता है. मोटिव वुड बी प्रॉफिट एज वेल एज वेलफेयर. मोटिव वुड बी प्रॉफिट एज वेल एज वेलफेयर ऑफ द पीपल. तो जब मोटिव रहेगा मेरे डियर्स प्रॉफिट, दैट मींस बिजनेस क्लास भी बेचारा हिट नहीं होगा. उनको भी बोल रहे हैं जितनी आप मेहनत करना चाहते हो आप कर सकते हो, यू विल प्रोग्रेस. और गरीबों को बोलेंगे यार आपको भी एक्सप्लॉइट नहीं होने देंगे बाय द बिजनेस पर्सन, दे कांट एक्सप्लॉइट यू. हमारी इन पे नजर है, गवर्नमेंट की इन पे नजर है, क्योंकि कैपिटल सिस्टम को कार्ल मार्क्स ने कहा ही था कि एक्सप्लॉइट करेंगे पोरों को, अगर इन पे नजर नहीं रखेंगे ये बहुत अमीर बनते जाएंगे, गरीब बेचारे गरीब ही रहेंगे. तो उस मॉडल का क्या फायदा जहां पे गरीब का कोई ना सुनता हो. हमने बोला हम इनका भी रखेंगे नजर में और इसका भी रखेंगे नजर में. समझ आई ना बात. अभी अगर हम एग्जांपल देखेंगे मेरे डियर्स, हमारे फॉर इंस्टेंस यू आर सीइंग in our own Kashmir there are many private colleges, many private hospitals, even private universities है, ठीक है ना. दैट मींस प्राइवेट पर्संस आर गिवन कंप्लीट फ्रीडम. अगर किसी बंदे के पास पैसा है, वो इन्वेस्ट करना चाहता है, उसको गवर्नमेंट बोल रही करो, आपको हम अलाउ करते हैं. सो दैट मींस हमने कैपिटलिस्ट मॉडल पे काम किया. दे आर डूइंग एवरीथिंग, उनको हम रोक नहीं रहे हैं. लेकिन साइड में गवर्नमेंट को यह भी पता है कि पोवर्टी बहुत है इकोनॉमी में, तो उसने गवर्नमेंट कॉलेजेस बनाई है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज बनाई है जहां पे पोअर स्टूडेंट एफोर्ड कर सकता है. समझे ना. प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, जो एफर्ट करता है वो जाता है उधर 3 लाख में, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ फैसिलिटीज रखी है. अगर किसी गरीब बच्चे को पढ़ना है आईएएस के लिए, देयर आर सम फैसिलिटीज फॉर देम, दैट मींस वेलफेयर इज टेकन केयर ऑफ, ठीक है ना. जिसके पास इतनी दौलत है ही कैन फ्लाई इन एरोप्लेन. तो प्राइवेट एरोप्लेन सर्विसेज है, एयर सर्विसेज है. लेकिन गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से, इसको पता है कि हिंदुस्तान इज फुल ऑफ पॉवर्टी, इसने अभी भी रेलवेज अपने कंट्रोल में रखा है. होल इंडियन रेलवे इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट. उसमें कोई प्राइवेट नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि गरीब बेचारे कैसे जाएंगे फ्रॉम यूपी टू बिहार, फ्रॉम बिहार टू महाराष्ट्र. So poor can afford to go in government rails. Otherwise हमारा लॉजिक बोलता है अगर बारामूला से जाना होगा बानीहाल, यार I have to pay only 50 rupees. Otherwise it will cost me 400 rupees अगर मैं टवेरा में जाऊंगा, ठीक है ना. तो गवर्नमेंट बहुत फायदा दे रही है गरीब को. तो मोटिव ऑफ द गवर्नमेंट इज वेलफेयर. वो गरीबों का सोच, उसको पता है किसी को कम टाइम पे पूछना चाहे, वो अमीर होगा, वो एफोर्ड कर सकता है एरोप्लेन में जाने के लिए, लेकिन गरीब के लिए वो रेलवे बना रही है. समझ आई. So those are the motives of mixed economy, where welfare as well as profit are taken care of, and that is the best model. Mixed economy is the best model, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव्स कैपिटलिस्ट के भी है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी, एफिशिएंसी भी होगी, इनोवेशन भी होगी, साइड में गरीब बेचारा भी बच जाएगा. दिस इज द बेस्ट मॉडल. समझ आई डियर्स बात. आई होप यू आर डन विद इकोनॉमी. फिर हमारे डियर्स हो जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी जो हमने एक्सप्लेन किया इन डिटेल लास्ट लेक्चर, इसी की एक विंग निकलती है, दैट्स कॉल्ड एज कम्युनिस्ट इकोनॉमी, है ना. सुना होगा ना नाम. तो एक थोड़ा सा डिफरेंस है सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड कम्युनिस्ट इकोनॉमी में. ऑलमोस्ट दे आर इक्वल.
In the socialist economy, we saw the means of production are owned by the government as a whole. है ना, गवर्नमेंट ओन करती है, प्रोडक्शन ऑफ द पोर मैन मोटिव रहता है. कम्युनिस्ट मीन्स एक्सट्रीम कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, जहां पे सारी प्रॉपर्टी जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में आएगी. इट बिलीव्स इन कम्युनिस्ट क्लासलेस सोसाइटी. जो ये प्रॉपर्टी है ये किसी की नहीं है, ये सारी कम्युनिटी की है. तो कम्युनिस्ट इकोनॉमी में इशफाक सर, वी पीपल वी आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट. जब वो चाहती कुछ भी कर सकती है लोगों के साथ. तो आपका जो घर है, आपकी जो जमीन है, आबाद जमीन, वो आपकी नहीं है, वो सब कम्युनिटी की है. वी कॉल दैट एज कम्युनिस्ट इकोनॉमी. इसी के बारे में असल में कार्ल मार्क्स लिख रहा था. वो बताइए जो प्रॉपर्टी है, ये जो बड़े लोगों ने खाई है, अडानीज ने, असल में इस पे सब लोगों का हक है. गवर्नमेंट को सबका सोचना चाहिए. इसको अगर लग रहा है कि इसके पास 10,000 कुनाल है, इसको बोलना है यार आपको देंगे 2 कुनाल जो आपको जरूरत है अपनी लाइफ में, बाकी ये गरीबों का हक है, इस पे तेरा हक नहीं है. आपने एक ग्रेव किया है, आपकी फैमिली ने, आपके एंसेस्टर्स ने. दिस लैंड, दिस इज कश्मीर, दिस इज होल पीपल ओ इट, होल पीपल ओन इट. दिस गुलमर्ग ये किसी बड़े आदमी का नहीं है. अगर चाहे वो बोले कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, मैंने खरीदी है, नहीं. Everybody has share of it because every Kashmiri belongs to Kashmir. समझ आए ना? So in communist economy, the means of production are extremely owned by the government. उस पे एक्सट्रीम कंट्रोल आता है गवर्नमेंट का. इन कम्युनिस्ट, एक लाइन लिख के रखो ताकि याद रहे आपको, कभी कोई बोलेगा मुझे डिफरेंस बताओ. इन कम्युनिस्ट इकोनॉमी द गवर्नमेंट हैज एक्सट्रीम कंट्रोल. ये एक्सट्रीम जो है ये इंपॉर्टेंट है. इन कम्युनिस्ट इकोनॉमी मेरे डियर्स, द गवर्नमेंट हैज एक्सट्रीम कंट्रोल ओवर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. तो वहां पे जो सारे रिसोर्सेज होंगे कंट्री के, उनको ओन करती है गवर्नमेंट. In communist economy, the government has extreme control in communist economy, my dears, the government has extreme control over the means of production. जो सारी प्रॉपर्टी जो है इसको ओन करती है सोसाइटी, इसको ओन करती है गवर्नमेंट. कोई ये नहीं बोल सकता है कि ये मेरी है, ठीक है ना. जब भी गवर्नमेंट को लगे कि मुझे इस बंदे को देना, इसके पास कुछ नहीं है, वो इससे स्नैच कर सकती है, उसको दे सकती है. दैट इज व्हाट कम्युनिज्म बिलीव्स इन. समझ आए ना? सो कम्युनिस्ट इकोनॉमी बिलीव्स इन ए क्लासलेस सोसाइटी. इसमें कोई क्लास नहीं रहेगा. फिर कोई नहीं बोल सकता मैं ब्राह्मण हूँ, ये बेचारा लोअर कास्ट का है, ये इसको कोई हक नहीं है यहाँ जाने का. एवरीबडी हैज इक्वल शेयर. समझ है ना? सो कम्युनिस्ट इकोनॉमी बिलीव्स इन ए क्लासलेस सोसाइटी. इसमें फिर कोई क्लास नहीं रहेगा. कम्युनिस्ट इकोनॉमी बिलीव्स इन ए क्लासलेस सोसाइटी. It believes in a classless society. तो इसका बहुत बड़ा सपोर्टर था कार्ल मार्क्स. इस क्लासलेस सोसाइटी का वो बहुत बड़ा सपोर्टर था. बोलता था हर एक का हक है, हर एक चीज पे हर एक का हक है. ऐसा नहीं है कि ये अमीर का है, गरीब का कुछ नहीं है. वो आया इस धरती पे, उसको अल्लाह ने लाया इस दुनिया में, उसका हक है. He has the resources. So अगर वैसी इकोनॉमी का कोई सोचेगा, फिर कोई बेचारा रोड पे ऐसे नहीं होगा, इसके पास कोई जमीन नहीं है, इसका कोई नहीं है, गवर्नमेंट इसकी है, इसका भी बराबर शेयर है, ये आया है इस दुनिया में, he owes something, he owns something on this land. अब कोई आया बड़ी फैमिली में पैदा हुआ तो बोलते बड़ा आदमी है, पहले से सारे रिसोर्सेज इसके है. दैट इज नॉट व्हाट कम्युनिस्ट इकोनॉमी बिलीव्स इन. बोलेगा ये बंदा आया, इसको भी उतना ही शेयर होगा जितना उस बंदे को है जो किंग की फैमिली में पैदा हुआ होगा. बोथ आर इक्वल, दोनों इंसान है. समझ आई बात? आई होप यू गॉट दैट. तो इसकी एग्जांपल हमें मिलती थी पहले टिल 1980s चाइना में. चाइना वाज अ कम्युनिस्ट इकोनॉमी. या वी हैव नॉर्थ कोरिया, दे बिलीव इन कम्युनिस्ट इकोनॉमी. वियतनाम है, क्यूबा है. दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स जो इस पे बहुत यकीन करते थे कि कम्युनिस्ट मॉडल पे. तभी हम अभी देखते हैं ना, नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन, जो कुछ उसको अच्छा लगता है अपने लोगों के लिए वो करता है. Nobody is superior to the country. वो सीधे बोलता है I can cut anybody's throat whenever I think he is going against the economy, against the country, चाहे मेरी अपनी बेटी क्यों ना हो. So they believe in communist economy, communist society, सबका है. चाइना, ये एग्जांपल 2-3 लिख के रखो. कौन कौन सी कंट्रीज इस पे यकीन करती है कम्युनिस्ट इकोनॉमी पे? चाइना है, नॉर्थ कोरिया है, क्यूबा है, वियतनाम है. डन? समझ आई बात? एक पॉलिश इकोनॉमिस्ट है, पोलैंड का है वो. हिज नेम इज ऑस्कर लैंज. OSCARLA, आप लिखो. ऑस्कर लैंज इज अ पॉलिश इकोनॉमिस्ट. Point months the one competitive exam 1 month. Oscar Lange is a Polish economist.
ऑस्कर लैंड, इसको अंडरलाइन करना और याद भी रखना। ही इज अ पॉलिश इकोनॉमिस्ट, यानी कि ही इज फ्रॉम पोलैंड। OSCAR, ऑस्कर LANGE, पॉलिश इकोनॉमिस्ट, यानी कि ही इज फ्रॉम पोलैंड। He has given a very important term, market socialism. Market socialism. He has given a very important term, market. This is asked in the exams. Who has given the term market socialism? It has been given by an economist, Oscar Lange. समझ आई बात? किसने दी है टर्म मार्केट सोशलिज्म की? पॉलिश इकोनॉमिस्ट ऑस्कर लैंज ने। तो मार्केट सोशलिज्म में मेरे डियर्स वो यही बोलता है कि blend of both. We need to have a socialist economy where welfare of the people is taken care of, but besides that we must appreciate free market. है ना, जो फ्री मार्केट जो हमने इनविजिबल हैंड देखा, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस विल डिटरमाइन इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी. गवर्नमेंट विल नॉट इंटरफेयर टू मच इन डिटरमाइनिंग द प्राइस, मार्केट विल बिहेव ऑन इट्स ओन. तो बिलीव करता था उस फ्री इंटरप्राइज इकोनॉमी में भी, यानी कि वो बिलीव करता है बोथ कैपिटल सिस्टम में भी और सोशलिज्म में भी, लेकिन ब्लेंड ऑफ बोथ. उसने बोला अगर एक एक्सट्रीम लेंगे, बोलेंगे खाली सोशलिस्ट इकोनॉमी अच्छी है, वो भी ठीक नहीं है. खाली वेलफेयर का सोचिए, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी इकोनॉमी में, ज्यादा कंपटीशन नहीं होगा, धीरे धीरे इकोनॉमी पीछे जाएगी जैसे इकोनॉमीज में हुआ. अब बोलेंगे खाली प्राइवेटाइजेशन, उसमें भी एक्सप्लॉइटेशन ऑफ पोर हो जाएगा. ब्लेंड ऑफ बोथ बहुत जरूरी है. यानी कि ही वेंट अ बिट क्रिटिक टू कार्ल मार्क्स एज वेल. बोला कार्ल मार्क्स सीधे बोला है क्लासलेस सोसाइटी, सारा कंपटीशन खत्म करो, किसी का भी कुछ नहीं है, वो सारा गवर्नमेंट का है, उसमें एफिशिएंसी दिन ब दिन कम हो जाएगी, इकोनॉमी आगे नहीं जा सकती है. वी नीड ब्लेंड ऑफ बोथ. थोड़ा मार्केट भी होना चाहिए, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए बिजनेस पर्सन को, प्राइवेट को, टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर, टू गेन मोर एंड मोर प्रॉफिट. While gaining more and more profit, the invisible hand of Adam Smith prevails. They will hire more and more laborers. जब वो ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा उनको, वो ज्यादा काम करेंगे, दिन रात काम करेंगे. दिन रात काम कर रहे हैं अपनी लालच के लिए, लेकिन काम करने में उनको हायर करना पड़ेगा लेबर. गरीबों को भी फायदा आएगा. जब उन्होंने लेबर हायर किया तो वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट उस इकोनॉमी में कम हो जाती है, वहां पे पोवर्टी फॉल हो जाएगी. सो ये प्राइवेट पर्सन अपने लिए बाकी को भी फायदा उठा रहा है. इंस्टीट्यूट ग्रो हो रहा है, ग्रो होते होते 4 टीचर्स को एब्सॉर्ब करेगा. 4 टीचर्स को एब्सॉर्ब किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स को अच्छी सर्विस भी मिलेगी उधर. ठीक है ना. सो ऐसा नहीं है कि प्राइवेट ऑल टुगेदर फॉल्ट है, प्राइवेट ऑल टुगेदर एक्सप्लॉइटेशन है. इसमें इसमें इकोनॉमी को भी फायदा आता है. सो ब्लेंड ऑफ बोथ, उसने उसको टर्म दी है मार्केट socialism. This is asked in the exam. Who has given the term market socialism? This has been given by the Polish economist Oscar Lange. Done. I hope we are done with all these different economies. Socialist economy, its main features. Capitalist economy, its main features. Mixed economy, its main features, and a bit of communist economy. And this Oscar Lange. Done now. Now we will take, मेरे dears, the most important topic जो हमारे आज के लेक्चर का है, that is inflation. सबसे important topic for your competitive exams, be it SSB level, SSC level, or KS exam, KS IAS. This topic will help you in your prelims exam. It will help you in your mains exam. Directly question आता है inflation पे mains exam में economic section से, and it will also help you at your interview stage. वहां पे भी inflation पे पूछा जाएगा आपसे. You are expected to know too much about inflation. कैसे कंट्रोल करेंगे वो सारा इंशाल्लाह हम करेंगे इस यूनिट में. Inflation. Tell me what's inflation. बोलो मुझे क्या होती है इन्फ्लेशन. हाँ, राइज इन प्राइस लेवल मींस इन्फ्लेशन. और जो कुछ आपको इन्फ्लेशन के बारे में पता है मुझे बोलो. हाँ, परचेजिंग पावर ऑफ द करेंसी फॉल्स. शाबाश, अच्छा पॉइंट है. और वेरी गुड, नाइस पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट है. और भी बोलो कुछ इन्फ्लेशन के बारे में. इज इट गुड फॉर द इकोनॉमी इन्फ्लेशन? अच्छी है इकोनॉमी के लिए अगर इन्फ्लेशन होगी इकोनॉमी में. हाँ, इज इट गुड और बैड? मुजम्मिल, अगर कंट्रोल में रखेंगे तो इट्स गुड. हाँ, कोई टाइप ऑफ इन्फ्लेशन आपको पता है क्या क्या है? ओके, कॉजेस क्या है इन्फ्लेशन के? वो भी पता नहीं है. हाँ, पता है तो बोल नहीं पाओगे. हाँ, चलो ठीक है मेरे डियर्स. नाउ वी विल take the topic of inflation. So usually everybody says that, even a layman talks that जब भी प्राइस लेवल बढ़ जाती है इकोनॉमी में, प्राइस लेवल हम इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन, या उर्दू में कहते हैं महंगाई.
जब मार्केट में हर एक आइटम का प्राइस बढ़ रहा है, हम बोलते हैं इन्फ्लेशन है। फॉर इंस्टेंस ये मार्कर 20 रुपए का था, ये हुआ है 35 रुपीज में, 30 रुपीज में, दैट इन्फ्लेशन इज टेकिंग प्लेस, प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो जनरल इंक्रीज इन प्राइस लेवल वी यूजुअली कॉल एज इन्फ्लेशन, जनरल इंक्रीज इन प्राइस लेवल। लेकिन जो इकोनॉमिक डिफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन है वो आप याद रखोगे, अभी अपनी कॉपी पे लिखोगे, when the price level increases persistently and consistently, we call that as inflation. When the price level in an economy is increasing, when the price level in an economy is increasing persistently, yeah, consistently, we call it as when the price level in an economy is increasing consistently or persistently. Please underline these two words, these are very important. We call it as inflation. तो मेरे डियर्स, फॉर इंस्टेंस अगर ओनियन है ना, ओनियन की प्राइस थी 30 रुपीज इन द ऑन 15th ऑफ Feb, 30 rupees. On 20th Feb, its price reached to 60 rupees. Its price reached to 60 rupees. On 25th of Feb, एक ही महीने में प्राइस फिर से आ गई वापस 40 रुपीज पे. Shall we call it inflation? प्राइस फ्रॉम 30 से 60 हो गई, फिर 60 से वापस आ रही है 40 पे, अभी भी ज्यादा ही है. कैन इट बी कॉल्ड एज इन्फ्लेशन? बोले इसको मुजम्मिल इन्फ्लेशन? सो मेरे डियर्स, सो दिस पॉइंट is not fitting in our definition. Price is increasing persistently and consistently. So this in economics is known as fluctuation in price level. Price बढ़ रही है फिर घट रही है, बढ़ रही है घट रही है. These are called as fluctuations. ये होती रहती है because एक नेसेसिटी है, कंज्यूमर गुड है, इनमें ऊपर नीचे होता रहता है. पेट्रोल में अभी 80 में 70 में. So we can't call it as inflation. These are known as fluctuations in price level. When price level is increasing consistently, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, वापस आने का नाम नहीं ले रही है ना. When price level is increasing persistently and consistently, that is the exact definition of inflation. समझ आए ना? तो प्राइस लेवल ऐसे बढ़ रही है, इनपुट का ये ऊपर ऊपर जा रही है, वापस नहीं आ रही है. तो ये प्राइस यहाँ पे था 5 से पूछो कहाँ पूछा है, 70 पे जब गया है. तो इट्स इंक्रीजिंग स्मूथली एंड कंटिन्यूअसली. दैट इज द एग्जैक्ट डिफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन. नाउ यू विल टेल मी सर आप क्यों बोल रहे हो ऐसा? 4 years before, an MCQ was asked in UPSC prelims exam, see the definition of inflation pay. So they had said inflation means, first option was increase in price level. Second option was general increase in price level of goods and services. Third option was persistent and consistent increase in price level of goods and services. Fourth option was none of the above. अब स्टूडेंट क्या करेगा? जनरल इंक्रीज इन प्राइस लेवल, दैट्स करेक्ट. Increase in price level, that too is correct. Persistent and consistent increase in price level. But in UPSC, in KS exam, you would be already told that most appropriate answer. तो ये KS का जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है, यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम, तीनों ऑप्शन ट्रू होते हैं. हमें सबसे अच्छा देखना होता है. ऑल 3 ऑप्शंस आर करेक्ट. वो ऐसा नहीं है कि एसएसबी का एग्जाम है तो एक ऑप्शन पाकिस्तान ब्याह कन्याकुमारी, ऐसा नहीं है. बहुत क्लोज ऑप्शंस होते हैं. So the correct option in UPSC paper they had given persistent and consistent increase in price level. समझ आई? अदरवाइज किसी बच्चे ने बराबर लिखा हुआ जनरल इंक्रीज इन प्राइस लेवल, वो तो बुक पे लिखा है ना, लेकिन उस बेचारे को पता हो कि वो गलत हुआ. हमने लिखा है कंसिस्टेंट एंड पर्सिस्टेंट इंक्रीज इन प्राइस लेवल. तभी आपको ये पॉइंट याद रखना है. कंसिस्टेंट एंड पर्सिस्टेंट इंक्रीज इन प्राइस लेवल मींस इन्फ्लेशन. समझ आई डियर्स बात? नीचे आप लिखोगे फिर वही जो मेरा भाई बोल रहा है कि when too much money is chasing too few goods, that too is called as inflation. ये इकोनॉमिस्ट ने डेफिनेशन दी है. When too much money, when too much money
is chasing too few goods, we call it as inflation. समझ आई डियर्स बा, ये डेफिनेशन किसी इकोनॉमिस्ट ने दी है, व्हेन टू मच मनी इज चेजिंग टू फ्यू गुड्स दैट टू बी कैन बी कॉल्ड एज इन्फ्लेशन. क्योंकि हमारे पास पैसा तो बहुत है लेकिन आइटम्स कुछ नहीं आ रहे मार्केट से. दिस इज व्हाट आवर एल्डर्स टेल अस. वो बोलते थे यार मैं श्रीनगर जाता था 100 रुपया लेके, बहुत आइटम्स लाता था वहां से, आज 1000 लेता हूँ श्रीनगर, वो सारा किराए में ही जाता है, कोई आइटम ही नहीं आता है. दैट मीन्स इन्फ्लेशन हैज टेकन प्लेस फ्रॉम लास्ट 20 years. आपका बाबा बोलता होगा बोसन अंधा रकन बात सचुए और अंधा रकन आप सचुरती है. वो ही इज टेकिंग टू मच मनी, कुछ आ नहीं रहा है. तब 1 ही रुपया हम लेते थे, एक रोटी लाते थे 1 रुपए से. तो दैट मीन्स द वैल्यू जो है करेंसी का ये फॉल हो रहा है ना. विद इंक्रीज इन प्राइस लेवल जो मेरी करेंसी का वैल्यू है दैट इज फॉलिंग, इसका कोई वैल्यू नहीं रहा अब. ठीक है ना. योर डैड मस्ट बी टेलिंग यू दैट इन 1960 1970 ये जो 5 कुनाल लैंड है ये हमने 20,000 में सारे खरीदे. 5 कुनाल लैंड इन 1960 20,000 में तेरे पापा ने खरीदा किसी से. आज वही 5 कुनाल 5 लाख में नहीं मिलेंगे, 50 लाख में भी नहीं मिलेंगे. दैट मीन्स दैट 20,000 इज बेटर देन टुडे इज 50 लाख रुपीज, है ना. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट आज के 50,000 का उतना वैल्यू नहीं है जो तब के 20,000 रुपए का था. समझ आ रही है ना. सो इन्फ्लेशन लीड्स टू फॉल इन वैल्यू ऑफ करेंसी. इन्फ्लेशन की वजह से वैल्यू ऑफ करेंसी फॉल होता है ना. जो 10 रुपए का वैल्यू था तब व्हेन यू वर ए किड, आता इसी खबर कसदा ग्लूकोज रॉड, आज वो 10 रुपया आज चिंगम आती वहां, है ना. इट हैड टू मच वैल्यू देन. तो अलग वैल्यू. किसी दोस्त के पास जब 10 रुपए होते थे जेब में, 4 4 बंदे उसके पीछे पीछे चलते थे, कई खर्च आए, चोर ये भंडारा की गोश्त पकान. आज 10 रुपए का कोई वैल्यू नहीं है. समझ आ रहे हैं बात. इट इज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन देयर इज नो वैल्यू ऑफ करेंसी. वो रपये ईज खर्च दिवान तथ पे नेरान सारी ईद 3 दोहन. आज अगर 100 रुपये दिमो बचस ये मज गई 5 रुपये रिचार्ज, पत क्या दितु तुम मे बोलता है ना. 5 गई रिचार्ज तक क्या रोज मे पानस खतर मस्जिद त्रोयम 200 रुपये तूड़ आव तपरी बहुत तुत युत तमन दोन अगर 100 दिमो कंस फेरे सती हिंदुस्तान ऑल ओवर इंडिया. समझ आई बात. आई होप यू गॉट द डेफिनेशन ऑफ inflation. So when too much money is chasing too few goods, that too is inflation. When there is fall in the value of currency, that inflation is going on in the economy. Definition clear हुई ना inflation की. Now we will see मेरे dears various types of inflation. Various types of inflation. शाइस्ता कहाँ है. तो कल जो संडे था रात गए ना घर से किया. Creeping inflation is first type. Creeping inflation. Second type, मेरे dears, I will explain them one by one, is walking inflation. Walking inflation. Third type, मेरे dears, is running inflation. Running inflation. Fourth type, some of the books you will see, galloping inflation. ये याद रखना प्लीज, इन पे क्वेश्चंस आते हैं. Galloping inflation. And fifth and last type we have, मेरे dears, that's called as hyperinflation. Hyperinflation. Done? जरा बोलो. Creeping inflation, walking inflation, running inflation, galloping inflation, and hyperinflation. These are the various types of inflation. Now we will explain them one by one. What's creeping, what is walking inflation. ये करो मेरा बाकी. What's creep?
क्रीप मीन्स रेंगना, है ना। रेंगना क्या होता है? क्रीप मीन्स रेंगना। व्हाट इज रेंगना? खोखिश करना, करांच पकान, है ना, कश्मीरी में बोलते हैं ना, द वे फॉर इंस्टेंस अर्थवर्म दैट वॉक्स, समझ ही नहीं आता, ऐसे 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 आगे जाते हैं बेचारी, है ना, रेंगना। या स्नेक का चलना, अब स्नेक तो तेज जाता है, वो इंसेक्ट बहुत आहिस्ता आहिस्ता, छोटा बच्चा बेचारा वो रेंगता है, धीरे धीरे वहां पहुंचता है, तो उसका था क्या वो थोड़ी बलाई ना ना मदर, समझ नहीं आता उनको सीधा और वो फिट रसनिश, मुझे बस आते कि शायद गोल्ड मेडल, सब पता ही क्या बलाई है। सो सो creep means रेंगना, है ना। So when price level in an economy is increasing smoothly, mildly, पता भी नहीं चलता है prices बढ़ रही है, we call that as creeping inflation, है ना। When price level in an economy is increasing smoothly, आहिस्ता 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 आहिस्ता, हमें समझ नहीं आता है, ये मार्कर 30 रुपीज का है, अगले साल 31 का होगा, हम बोलेंगे यार इतना तो ठीक है, 31 का हुआ है, लास्ट ईयर 30 में था, तो जरा फील नहीं होता है उससे। आटे का एक बैग आता था आपको आपके पापा के पास 200 रुपीज में, वो हुआ है 205 रुपीज का नेक्स्ट ईयर, वो इट वोंट हिट फैमिली दैट मच, वी विल कॉल क्रीपिंग लेवल पे इन्फ्लेशन चल रही है इकोनॉमी में। समझ आ रही है बात मेरे डियर्स? व्हेन प्राइस लेवल इन एन इकोनॉमी इज इंक्रीजिंग, हाँ लिखो, व्हेन प्राइस लेवल, व्हेन प्राइस लेवल, व्हेन द लिखना, व्हेन द प्राइस लेवल इन एन इकोनॉमी is increasing smoothly or mild pace. When the price level in an economy is increasing smoothly or mildly at the rate of 1 to 2%, at the rate of 1 to 2%, we call it as, yes, we call it as creeping inflation. समझ आ रहे हैं यहां तक बात? जब 1 से 2% का इंक्रीज हो रहा है प्राइसेस में आफ्टर एवरी ईयर, माइल्डली बढ़ रही है प्राइसेस, एज इफ द क्रीपिंग ऑफ एन इंसेक्ट, समझ नहीं आ रहा, फील नहीं हो रहा है ज्यादा, तो उसको हम बोलते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। तो जो आइटम इस साल हमें 100 में मिलता था, अगले साल वो मिलेगा 102 में, 101 में, इट वोंट हार्म दैट मच पोर पर्सन, वो बेचारे बोलेंगे ठीक है यार इतना तो है। समझ आई बात? तो यहाँ पे अब एक पॉइंट बन रहा है मेरे डियर्स हमारे लिए, अभी तक बिफोर नोइंग इकोनॉमिक्स हमें लगता था इन्फ्लेशन शायद इट्स ऑलवेज हार्मफुल फॉर द इकोनॉमी, बट इट्स नॉट लाइक दैट। समटाइम्स इकोनॉमी वेलकम्स इन्फ्लेशन, वी वेलकम इट, ये जरूरी भी है इकोनॉमी में थोड़ा इन्फ्लेशन बढ़ना। So when prices are increasing at the creeping level 1 to 2%, it's not a headache for the economy, it is never harmful for the economy. Price level at the creeping level is always welcomed by the economy. When the price level in an economy is increasing at, when the price level, when the price level in an economy is increasing smoothly or at mild pace, when the price level in an economy is increasing smoothly or at mild pace, it's always welcomed by the economists. इसको वेलकम किया जाता है. This is a handy point for your mans. In addition, this is a handy point. ये explanation है creeping की. When the price level in an economy is increasing smoothly, or at the mild pace, it's always welcomed by the economists. यहां तक लिखा ना? Because it motivates the producing class, because it motivates the producing class to produce more and more, because it motivates the producing class to produce more and more, because it motivates the producing class to produce more and more and earn more and more profit. And earn more and more profit, PRO effect.
डन डियर्स। अब आप बोलोगे सर इसको क्यों वेलकम किया जाता है ना, पॉइंट वो है जब माइल्ड रेट पे बढ़ रही है प्राइस, ऐसे जो प्रोड्यूसिंग क्लास होता है मेरे डियर्स, जो हमारा सप्लायर ग्रुप है, जो हमने पढ़े डिमांडर्स भी आते डिमांडर्स, लेकिन जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो आइटम्स बना रहे हैं वो सप्लायर्स है, दैट द प्रोड्यूसिंग क्लास। जब उनके आइटम्स की प्राइस धीरे 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 बढ़ रही है, वो बेचारे भी मोटिवेट हो रहे हैं, यार हमारी आइटम्स की प्राइस बढ़ रही है, हमें थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट अब मिलेगा, अगले साल और प्रॉफिट मिलेगा, हम और प्रोड्यूस करेंगे। जब वो ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, वो ज्यादा लेबरर्स को हायर करेंगे, ज्यादा लेबरर्स को हायर करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट फॉल हो जाएगी ऑटोमेटिकली। दैट्स व्हाई इट्स वेलकम्ड। अदरवाइज हर साल उस बेचारे ने बनाया कोई आइटम, उसका प्राइस सेम दे रहा है, यहाँ से धीरे धीरे इसके कॉस्ट बढ़ रहा है, उसको इस साल लेबर मिलेगा 300 रुपए में पर डे, अगले साल 300 में नहीं मिलेगा, मिलेगा 350 में, नेक्स्ट ईयर 400 में मिलेगा। यहाँ से इसके आइटम की प्राइस नहीं बढ़ रही है, तो बेचारा बोलेगा मैं ये काम ही नहीं करूंगा क्योंकि प्राइस नहीं बढ़ रही है मेरे आइटम की, मुझे यहाँ से जो इनपुट कॉस्ट है मेरा रॉ मटेरियल का वो बढ़ रहा है, मेरा तो दिन ब दिन खसारे में जा रहा है मेरा बिजनेस, मुझे क्या फायदा ये आइटम बनाना। जब वो आइटम बनाना छोड़ देगा, उसके पास जो 1000 लोग बेचारे काम कर रहे होंगे वो उनको छुट्टी करेगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगी। दैट इज द ओनली रीजन व्हाई वी वेलकम क्रीपिंग लेवल। तो थोड़ा 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 प्राइस बढ़ना चाहिए इकोनॉमी में, ऐसे जो प्रोड्यूसिंग क्लास होता है वो बहुत खुश होता है, वो मोटिवेट होता है और प्रोड्यूस करने के लिए। जब इशफाक सर को इस साल फार्नेस इसके लेक्चर को दिया जाएगा 1000, अगले साल इसको मिलेंगे 1200 1500, ये ज्यादा मेहनत करेगा, बोलेगा हाँ हाँ मेरे कॉस्ट बढ़ रहे लेकिन मुझे रिटर्न भी ठीक मिल रहा है। अब अगर इस बेचारे को 10 साल तक खाली वही 1000 रहा है, बोले यार यहाँ से कॉस्ट बढ़ रहा है, कुछ मिलता नहीं है, तो ये छोड़ देगा सर्विस देना, ये सप्लाई करना छोड़ देगा, तो उससे फिर इफेक्ट हो जाएगी इकोनॉमी। समझ आई ना बात? तो ऐसे प्रोड्यूसिंग क्लास बोलेगा मेरा तो कुछ बढ़ नहीं रहा है। So if your one पेटी of apple costs gives you price of 1000 this year, next year it should give you 1050 rupees, another year 1100 rupees, like that, so that जो हमारे व्यापारी लोग हैं बेचारे वो मोटिवेट हो जाए ज्यादा से ज्यादा काम करने के लिए। जब वो ज्यादा काम करेंगे तो ज्यादा लेबरर्स को रोजगार दे सकते हैं, क्योंकि उस फ्रूट ग्रोवर के साथ 10 लोग उसके साथ काम करते हैं, 10 ड्राइवर्स उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। दैट इज द ओनली रीजन व्हाई वी वेलकम क्रीपिंग इन्फ्लेशन। आई होप इट इज डन, है ना, पॉइंट है ना समझ, व्हाई वी वेलकम इट। देन मेरे डियर्स वी हैव सेकंड इन्फ्लेशन, दैट्स कॉल्ड एज, यस में कभी कभार ये भी आता है व्हिच इन्फ्लेशन इज आल्सो नोन एज माइल्ड इन्फ्लेशन। माइल्ड हमने लिखा डिफिनेशन में, दैट इज क्रीपिंग इन्फ्लेशन। सेकंड इज वॉकिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग इन्फ्लेशन मेरे डियर्स, अब अब रेंगना इसने छोड़ दिया, अब आहिस्ता आहिस्ता इसने वॉक करना स्टार्ट किया, है ना। अभी तक होता है उस इश्फाक सर खुश कुछ करा करा पका ये वो समझे कि नफर ब्रो कलामा वही लोग ये पकुन, है ना, अब ये चल रहा है। दैट मींस अब प्राइस लेवल थोड़ा तेज बढ़ रही है, नाउ वी कैन फील इट। आप अब अपने दोस्त को बोलो कि यार लास्ट ईयर हमने इसके पास खाया था वो पिज्जा, वो मिला था 400 में, 420 का हुआ है, यू कैन फील इट, है ना। तो कस्टमर फील्स दिस इन्फ्लेशन, सो वी कॉल दैट एज वॉकिंग इन्फ्लेशन व्हेन रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज अ बिट फास्टर देन द क्रीपिंग लेवल। तो यहाँ पे ये थोड़ा हिट करेगी ये गरीब को, उसको लगेगा नहीं ये आटे का बैग आता था 250 में, ये हुआ 270 का पूरे भी कभी खचा, तो दैट इज वॉकिंग इन्फ्लेशन। समझ आई ना, हमारे घर में होता है ना, ये डेटॉल सोप हम लाते थे 40 में, उसका ना सुनो 500 रुपये खसा 5 खसमस, तो दैट इज वॉकिंग इन्फ्लेशन। समझ आई बात? when the price level in an economy increases a bit faster than creeping level, when the price level in an economy increases a bit when the price level in an economy increases a bit faster than the creeping rate, a bit faster than the creeping rate, that means from वहां पे हुआ था 1 to 2%, यहां पे हो जाएगा from 2 to 10%, a bit faster than the creeping rate, that means from 2 to 10%, थोड़ा तेज बढ़ रही है प्राइसेस, we call it as वॉकिंग इन्फ्लेशन। समझ आई मेरे डियर्स बात? तो वहां पे वो बहुत रेंग रही थी, स्मूथली बढ़ रही थी प्राइसेस, समझ नहीं आ रहा था, अब थोड़ा उन्होंने वॉक करना स्टार्ट किया, है ना। जो बंदा चलता है तो वी कैन फील वो आ रहा है मेरी ओर,
जो रैंक है वो समझ नहीं आता ये मेरी ओर आ रहा है, समझ आई ना। सो फ्रॉम 2 to 10% वी कॉल इट एज वॉकिंग इन्फ्लेशन। अब क्रीपिंग लेवल पे दैट इज नॉट द हेडेक फॉर द इकोनॉमी, क्रीपिंग लेवल पे दैट इज नॉट द हेडेक फॉर द इकोनॉमिस्ट, उसको वेलकम करते हैं, बोलते प्रोड्यूसिंग क्लास को प्रॉफिट मिलेगा तो फायदा आएगा इकोनॉमी को। यहाँ पे होशियार होना चाहिए इकोनॉमिस्ट को। जब वॉकिंग लेवल पे प्राइसेस बढ़ रही है, अब ये हिट कर रही है 4% उसको, दैट मीन अगर इसका जल्दी हम इलाज नहीं करेंगे, वी कैन सी प्रोटेस्ट इन कमिंग मंथ्स। हम देखेंगे गरीब बेचारे मार्केट में आएंगे, बोलेंगे महंगाई बहुत है, वो पॉलिटिशियंस के खिलाफ जाएंगे। समझ आई ना बात। क्योंकि जो आइटम 20 का है, अब वो मिलेगा उनको 24 रुपीज में, 25 रुपीज में। समझ आई ना बात। सो दिस इज एन अर्ली इंडिकेशन फॉर द इकोनॉमिस्ट, ये पहली इंडिकेशन होती है इकोनॉमिस्ट को टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। जब वॉकिंग लेवल की ओर जा रही है इन्फ्लेशन, दैट इज द फर्स्ट सिम्टम कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है इकोनॉमी में, इसको कंट्रोल करो वरना ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी पोअर पीपल के लिए। जैसे एक पेशेंट का पहला सिम्टम मिलता है डॉक्टर को, ओ यार फ्रॉम लास्ट 1 मंथ ही इज गोइंग थ्रू कॉन्स्टिपेशन, कुछ तो प्रॉब्लम होगी, 1 महीने तो नहीं रह सकती है, फ्रॉम लास्ट 1 मंथ उसको बहुत स्वेलिंग हो रही है, कुछ तो प्रॉब्लम है बंदे में, है ना। तो वो सिम्टम मिल रहे हैं ना। तो इकोनॉमी में पहला सिम्टम मिलता है जब वॉकिंग लेवल पे इन्फ्लेशन बढ़ रही है। समझ आई डियर्स बात, आई होप यू गॉट इट, समझना। सो इट गिव्स द फर्स्ट इंडिकेशन फॉर द इकोनॉमिस्ट, walking inflation gives the first indication, walking inflation, it gives the first indication to the economists, walking inflation मेरे डियर्स ना जो लिखा, ये मैं ऐसे बोलता हूँ पेट वर्ड है, मतलब बड़ी कायदी मस्जिद की पता क्यों होता है इतने समझ सर क्या बोल रही है, माय डियर क्या लिखा हमने। It gives the first indication to the economists to control it as early as possible. To control it as early as possible. Otherwise, it will start harming the poor. Otherwise, it will start harming the poor sections of the society. Otherwise, गरीब बेचारे harm होंगे इससे. Otherwise, it will start harming the poor sections of the society. अमीर तो ले सकता है उस प्राइस पे, लेकिन गरीब बेचारे को 2 बार सोचना पड़ेगा, अब मैं ये आइटम लूं या ना लूं, सोचना पड़ता है ना। गरीब बेचारा गया मार्केट, उसको चिकन लाना है, तो वहां पे उसको अपनी नजर थी 150 में आएगा, वो बोल रहा है 170, वो बेचारा 10 बार सोचता है यार 20 रुपए तो इसमें इजाफा हुआ है, अब लूं या ना लूं। अमीर के लिए टेंशन नहीं है, बोला कोई बात नहीं 207 वो देता है 170, लेकिन गरीब अपना डिसीजन अब चेंज करता है, मैं नहीं ले सकता हूँ इस प्राइस पे, वो बेचारा वापस निकलता है, क्योंकि उसकी लिमिटेड इनकम होती है, उसके पास 200 ही है, 50 रुपए में और आइटम्स लेने होते हैं, वो तर्क करता है फिर आइटम कंज्यूम करना। तो तभी हम बोलते हैं कि वॉकिंग लेवल पे इन्फ्लेशन चल रही है, गरीब हार्म हो रहा है इससे। समझ आई डियर्स बात। सो द क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम, which type of inflation gives the first indication to the economists to control it as early as possible, otherwise it will start harming the poor. That indication is given by the walking inflation. Which type of inflation is always welcomed by the economists, so that's better for the economy, that is the creeping inflation. When the rate of inflation goes from 2 to 10%, which type of inflation we call, it's the walking inflation. When the price level is increasing smoothly at the rate of 1 to 2%, what type of inflation? That will be creeping inflation. Done. Question can be posed in any way, तो अगर explanation पाए आसान तो फिर आसान है। Then walking turn होता है मेरे dears running back, we call that as running inflation. Running inflation. अब तो हमारे हाथ से इन्फ्लेशन निकल रही है, अब इकोनॉमिस्ट इस बेचारी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वो बेबस हो रहे हैं, उनके पास वैसे टूल्स नहीं है, तो अब इन्फ्लेशन बहुत तेज चल रही है इकोनॉमी में। दैट मीन्स अब ये मिडिल क्लास ऑफ द सेक्शन सोसाइटी है वो भी हार्म हो रहा है, क्योंकि अभी तक वॉक कर रहा था, अब ये रन कर रहा है। रन करने का मतलब दैट मींस प्राइसेस आर गोइंग वेरी फास्ट, अब मिडिल क्लास ऑफ द सोसाइटी विल आल्सो गेट हिट। समझ आई ना बात। when price level in an increase in an economy is increasing fast, अब फास्ट इंक्रीज हो रही है प्राइस, when the price level in an economy is increasing fastly, when the price level in an economy is increasing very fast, from 10 to
50%, from 10 to 50%, we call it as running inflation. We call it as, अब ये रन कर रही है बाबा, अब ये मिडिल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को भी हिट कर रही है, ठीक है ना। अब वही आटे का एक बैग जो 150 में मिलता था वो 190 में मिलेगा, 200 में मिलता था वो 250 में मिलेगा, क्योंकि बहुत तेज बढ़ रही है कंट्री में इन्फ्लेशन। दैट मीन्स अब इकोनॉमी के लिए एक प्रॉब्लम है, एक समस्या है। Now the critics will be ready to criticize the economy. They are not able to control the inflation. It has crossed the walking level as well. It is running. It is hitting middle section of the society as well. Poor का तो अब छोड़ो, वो तो नहीं ले सकते आइटम। द मिडिल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो बेचारे मुलाजिम भी है वो भी पूरे कंट्री में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा चल रही ही है। वी कॉल इट एज रनिंग इन्फ्लेशन। डन, समझ आई ना बात? देन मेरे डियर्स, यही रनिंग कन्वर्ट हो जाती है गैलोपिंग इन्फ्लेशन में, गैलोपिंग इन्फ्लेशन। तो ये प्रॉब्लम है रनिंग इन्फ्लेशन। इन चीजों को रोकना पड़ता है, अगर वक्त पे नहीं रखेंगे वॉकिंग को, वो कन्वर्ट हो जाती है रनिंग में, गैलोपिंग इन्फ्लेशन। हाँ, व्हाट इज गैलोप मुजम्मिल? गैलोप क्या होता है? आदिल, तुम्हारा बाइक से बात कौन? गैलोप क्या होता है? तो ही मीन्यू अदफर, व्हाट इज गैलोप? गैलोप होता है मेरे डियर्स, घोड़ा जो जंप करता है ना, उसको बोलते हैं गैलोप, है ना। व्हेन द हॉर्स रन्स, हमारी तरह रन नहीं करता है इंसानों की तरह, वो जंप करता है। वन हियर, वन जंप, सेकंड जंप 15 feet ahead, नेक्स्ट जंप another 15 feet ahead। तो जैसे इंसान दौड़ता है घोड़ा वैसे नहीं दौड़ता है, फुल पेस पे जब घोड़ा दौड़ता है, जैसे डियर दौड़ती है, ठीक है ना। व्हेन द जैगुआर इज फॉलोइंग द डियर इन द डिस्कवरी, यू मस्ट बी सीइंग, वो जंप करते हैं वो जानवर। या जब कंगारू दौड़ता है ऑस्ट्रेलिया, तो वो जंप करता है, उसको बोलते गैलोप। अब रन नहीं कर रही है प्राइस लेवल, अब सीधे ये जंप कर रही है 250 से सीधे 400, 400 से और एक जंप 600। So we call that as galloping inflation. That means that is much faster than running inflation, है ना। मैं दौड़ रहा हूँ, घोड़ा गैलोप कर रहा है, बुगा सब रोके गुर, वही तो आगे निकलेगा क्योंकि वो 15-15 फीट का जंप ले रहा है वो जानवर। So we call that as galloping. That means extremely fast inflation जा रही है इकोनॉमी में। When the price level in an economy jumps like gallops of the horse, when the price level in an economy jumps, when the price level in an economy when the price level in an economy jumps like the gallops of the horse, we call it as galloping inflation. Here the price levels are increasing at a tremendous rate, tremendously fast rate. Here the price levels are increasing. Here the price levels are increasing at tremendously fast rate. Fast rate. तो ये वाली इन्फ्लेशन तो जरूरी इकोनॉमी को हिट करेगी और बहुत हिट करेगी, क्योंकि जंप कर रही है। 400 का आइटम 600 में हो रहा है, 600 वाला आइटम 1000 में मिल रहा है। तो वही जो आप अभी तक केक लाते थे 100 रुपए में पलम केक, वो अब आपको 400 में मिलेगा। 400 का आइटम सीधे जो आप फॉरेनर्स को स्कार्फ लाते थे 400 का, वो उसने जंप किया है, 900 में मिल रहा है। इतनी महंगाई है मार्केट में, हम बोलते हैं तब इसको गैलोपिंग इन्फ्लेशन। देयर आर सम ऑफ द बुक्स जो गैलोपिंग और रनिंग इन्फ्लेशन को एक साथ लिखते हैं, गैलोपिंग एंड रनिंग इन्फ्लेशन। लेकिन जब हम मास्टर्स लेवल पे बुक्स पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के, वहां पे गैलोप माना जाता है अहेड देन रनिंग, क्योंकि रन होता है घोड़े जब हम दौड़ेंगे इंसान, लेकिन घोड़ा हमारी तरह थोड़ी दौड़ता है, वो गैलोप करता है, जंप करता है। देयर इज सम डिफरेंस, ठीक है ना। तो गैलोपिंग इज फॉर फास्टर देन द रनिंग इन्फ्लेशन। समझ आई ना डियर्स बात? आई होप यू गॉट इट। जब जंप करती होंगे प्राइस लेवल, तब हम बोलते हैं इसको गैलोपिंग इन्फ्लेशन। ये तो एक्सट्रीम है,
फिर मेरे डियर्स एक्सट्रीमिस्ट केस जो होता है उसको हम बोलते हैं लास्ट वाला इन्फ्लेशन, दैट इज हाइपर इन्फ्लेशन। वो इंपॉर्टेंट है, उस पर एमसीक्यू आता है, हाइपर इन्फ्लेशन। तो बराबर मेरे डियर्स हाइपर इन्फ्लेशन, बराबर हमने स्टार्ट किया क्रीपिंग से, रेंगते से वॉक किया, वॉकने से रन किया, रगने से दौड़ना स्टार्ट किया, दौड़ने से अब समझ नहीं आ रहा ईशा उड़ा की नहीं कैश कर रहा है, समझ आ रहा है बात, वो बराबर सिलेबस में जा रहा है। तो हाइपर इन्फ्लेशन इट वुड बी लाइक जैसे रॉकेट जा रहा है, अभी छोड़ा तो इट हैज क्रॉस्ड मिलियंस, है ना, डिस्टेंस बहुत तेज, जैसे बुलेट निकला गन से तो पता नहीं कहां पहुंचा, तो उसने अब घोड़े को भी पीछे छोड़ा, ठीक है ना, एट रॉकेट स्पेस और एट द पेस ऑफ द बुलेट जब प्राइस बढ़ रहे हैं किसी इकोनॉमी में, वी कॉल दैट एज हाइपर इन्फ्लेशन। तो दिस इज द एक्सट्रीमिस्ट केस ऑफ द इन्फ्लेशन दैट कैन हिट एन इकोनॉमी, जब वो नजर ही नहीं आ रहा है, यानी कि जो आइटम 10 रुपीज का था, गुड़ क्या बात नहीं हतस दामत, गूल है क्या बात नहीं हत पे हम चुकी 10 दामत, 5 दामत, समझ आ रही है बात। तो हम तब बोलते हैं इसमें हाइपर इन्फ्लेशन हो रहा है। सो इट इज द एक्सट्रीमिस्ट केस व्हेन प्राइस लेवल इन एन इकोनॉमी इज इंक्रीजिंग एट अ वेरी एक्सट्रीम रेट, व्हेन प्राइस लेवल्स इन एन इकोनॉमी, तो आप यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है ना, एक्सट्रीमिस्ट वो डालना, व्हेन द प्राइस लेवल्स इन एन इकोनॉमी इंक्रीज एट द एक्सट्रीमिस्ट रेट, एट द एक्सट्रीम ही लिखना, एक्सट्रीम खुद एडजेक्टिव है तो सुपरलेटिव ठीक नहीं रहेगा इसका। When the price levels in an economy, when the price levels in the economy increase at the extreme rate, increase at the extreme rate like a bullet or at the rocket space or at the, तो इनकी तो पेस सबसे ज्यादा होती है, बुलेट और द रॉकेट स्पेस, वी कॉल such an inflation as we call such an inflation as hyperinflation। डन। कभी कभार आप अपने दोस्त को बोलते हो ना, चला तू हाइपर का जल्दी, बोलते हैं ना आप क्यों हाइपर हुए, मैंने थोड़ी ऐसे बोला आपको, वो यही होता है हाइपर का प्राकृतिक बन थोड़ हुए, बात आई समझ, बोलते हैं ना हम लेमन कभी कभार। तो वी कॉल दैट एज मेरे डियर्स एज हाइपर इन्फ्लेशन, दैट मींस द एक्सट्रीम केस जब प्राइसेस बढ़ रही थी इकोनॉमी में अनलिमिटेडली, लिमिटलेसली, वी कॉल दैट एज हाइपर इन्फ्लेशन। जब मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दिया था ना for masters, we were asked this. When the price level in an economy is increasing at a very fast rate, limitlessly, that we cannot control, what would be that inflation called as? They had wrote running inflation, galloping inflation, creeping inflation, hyperinflation. So extreme जो ही आता है, extreme word, rocket space that we can't imagine to control, we call that as hyper. तो hyperinflation उसका आंसर था। तो इन इन्फ्लेशन के इन टाइप्स पे कभी कभार क्वेश्चन बनता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। समझ आई डियर्स बात? अब यहाँ पे अच्छा पॉइंट है नाउ, अभी तक क्वेश्चन बन सकता था फॉर एसएसबी लेवल और एसएससी लेवल, अब केस का पॉइंट क्या बनेगा? आई टोल्ड यू इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द लेक्चर, व्हेन इन्फ्लेशन इज टेकिंग प्लेस इन एन इकोनॉमी द वैल्यू ऑफ मनी इज इंक्रीजिंग, बोला ना, यस कर बैठ बैठ, द वैल्यू ऑफ मनी इज इंक्रीजिंग। हाँ मैं तो 2:30 बजे हम तो मान लगा वो है ना 2:30 बजे पास जैसा बचन तो मुस्ताद विस्तार में। So when price level in an economy is increasing, that means value of currency is falling, है ना, वही बात, वैल्यू ऑफ करेंसी अब वो नहीं रहा जो 60 साल पहले था। हायर प्राइस मीन्स फॉल इन वैल्यू ऑफ करेंसी, दे गो इन रिवर्स वे, हायर द प्राइसेस फॉल वैल्यू होता है, जितना जितना ज्यादा महंगाई होती है, इन्फ्लेशन होती है, उतना कम कम वैल्यू रहता है ऑफ द करेंसी का। When price level is going at the rate of hyperinflation, how must be the value of money falling? बहुत ज्यादा at the hyper rate. When prices are going at the hyper rate, that means value of currency must be decreasing at the hyper rate, है ना? So that is asked in your exam in KS level.
in which type of inflation the value of nation's currency reached almost equal to zero. That means that would be the extremist case of inflation. So that would be at the time of hyperinflation. तब हमारी currency का value almost zero तक पहुंच जाएगा. Oh, this is very good point. तो शुनिंदर करा समझ point बैठा दिमाग में. हाँ, when price level is increasing at extreme rate, that means money का value भी fall हो रहा है at the extremist rate. जब hyperinflation होगी तब नेशन की करेंसी का ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो पूछता है. दैट हैज बीन आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. वही आता है केस में ताकि आप रहिए वॉकिंग इन्फ्लेशन वहां पे अप्लाइड आता है. किस केस में इन्फ्लेशन के किस केस में नेशन की करेंसी का वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो आता है. सर ने वो नहीं टाइप से वो अप्लाई करना होता है. दैट इज व्हाट स्मार्ट स्टूडेंट डज. वो यार बहुत बढ़ रही होगी प्राइस तभी तो जीरो पे आएगा वैल्यू नेशन की करेंसी का. वो कब बढ़ती है उस लेवल की हाइपर इन्फ्लेशन के टाइम बढ़ेगी. आंसर देगा वो हाइपर इन्फ्लेशन. समझ आया पॉइंट. लिख के रखो. in case of hyperinflation in case of hyperinflation the value of nation's currency in case of hyperinflation मेरे dears, the value of nation's currency reaches almost equal to zero. This is a very good point competitive exams के लिए. इसको अंडरलाइन करना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. समझ आए ना कैसे. आई एक्सप्लेन इट दैट. हाँ, दिमाग में बैठ गए ना कैसे जीरो तक आ सकता है. क्योंकि प्राइस जितना ज्यादा फास्ट होता है उतना ज्यादा वैल्यू नेशन की करेंसी का फॉल होता है. अब अगर आप जब हाइपर इन्फ्लेशन हो रही है इकोनॉमी में प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं. अब अगर किसी को बोलोगे 10,000 भी दूं, वो बोला यार इसकी प्राइस इससे ज्यादा है. अब 10,000 का कोई वैल्यू ही नहीं रहा. दैट मींस ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो. 10,000 वुड बी लाइक न्यूज़पेपर. चाहे से तुम हिंदू देते चाहे से तुम देते 10,000 रुपये उसके लिए एक जैसी है. क्योंकि प्राइस तो करोड़ों में जा रही है, लाखों में जा रही है. ठीक है ना. So that is the case of hyperinflation. Currency would be like newspapers, like copy, like your rough copy at that time. This is what had happened in Germany after First World War. Germans में यही हुआ था, है ना. So after First World War, maybe I would have told you in earlier lectures, Treaty of Versailles के बारे में कहा था ना. तो Treaty of Versailles के बाद Germans were hit by hyperinflation. So it is wrote in the books that फिर Great Depression हुआ. शाबाश. It is wrote in the books. Hey, here. During hyperinflation of Germany after First World War, the German kids were making kites out of their national currency. जो जर्मनी के किड्स थे ना, वो बेचारे फिर काइट्स बनाते थे जर्मन मार्क के. मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं रहा, अब काइट्स ही बनाएंगे. हाँ, they used to take money in bags to get one bread. एक ब्रेड के लिए बैग से मनी देनी पड़ती थी. तो दैट मींस उसका वैल्यू फिर करेंसी का न्यूज़पेपर की तरह था. न्यूज़पेपर बंडला नियमो तैतीस ब्रेड आक. दैट इज हाइपर इन्फ्लेशन. देखो ये पॉइंट और पूछो ये क्वेश्चन यार. आता इन पका मार्क सिलता है. देखो after First World War Germany was hit by after First World War Germany was ये पॉइंट्स बहुत काम आते हैं आगे एग्जाम्स में फिर मेंस में. आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी वाज हिट बाय hyperinflation. After First World War, Germany was hit by hyperinflation. Full stop. The German kids used to make kites. The German kids used to make kites out of their national currency. That shows कुछ वैल्यू नहीं था इसका, तुम इस पतंग बनाओ. The German kids used to make kites out of their national currency. The German kids used to make kites out of their national currency. तभी मैंने कहा ना इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मेरे डियर्स, आफ्टर ट्रीटी ऑफ वर्सलिस जेएम कैनिस ने कभी कहा था, ये बात कही थी कि सेकंड वर्ल्ड वॉर होगा, जरूर होगा, क्योंकि उसने जर्मन को बहुत बैडली हिट किया था, बहुत एक्सपेक्ट हुए थे जर्मन. तो उसी का फिर रिवेंज लिया एडॉल्फ हिटलर ने.
उसने इनिशिएट किया सेकंड वर्ल्ड वॉर बिकॉज जर्मन्स वर बैडली हिट बाय ट्रीटी ऑफ वर्सलीज. ट्रीटी ऑफ वर्सलीज वाज द रीजन व्हाई हाइपर इन्फ्लेशन टुक प्लेस इन जर्मनी. वो बेचारे मजबूर किए गए टू इशू मोर एंड मोर करेंसी, टू इशू मोर एंड मोर करेंसी. जितना ज्यादा इंसान एक नेशन अपनी करेंसी इशू करता है उतनी ज्यादा वहां पे इन्फ्लेशन हो जाती है. वो बेचारे फोर्स किए गए. तभी हम बोलते हैं ना, कभी कभार कोई लेन देन बोलता है सर हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्यों नहीं ज्यादा इशू करता है करेंसी, पोवर्टी खत्म हो जाती है, सब अमीर हो जाते हैं. बोलते हैं ना 8th बच्चा 10th का बच्चा, तो उसको ये पता नहीं कि ज्यादा इशू करेंगे करेंसी ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाती है. दैट हैपेंड इन जर्मनी एंड दैट बिकेम मेन रीजन फॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर. समझ आई डियर्स बात? जिम्बाब्वे में हुई है हाइपर इन्फ्लेशन, हंगरी में हुई है हाइपर इन्फ्लेशन. हाइपर इन्फ्लेशन हाइपर नहीं है, वहां पे हाइपर नहीं है, ये एक्सट्रीम केस है. अभी रिसेंट केस हुआ है हाइपर इन्फ्लेशन का वेनेजुएला में इन 2018. हाँ, रिसेंटली. सो वो नीचे लिखो, कभी कभार आता है विच कंट्रीज हैव बीन हिट बाय हाइपर इन्फ्लेशन. वो हिस्ट्री में एक नाम है हाइपर इन्फ्लेशन का. तो हंगरी वाज हिट बाय हाइपर इन्फ्लेशन इन 1946 अराउंड. हंगरी Hungary was hit by hyperinflation. Zimbabwe was hit by hyperinflation. Hungary was hit by hyperinflation almost in 1946 में. Zimbabwe hyperinflation से hit हुआ 2000 में, 2006 में. Hungary was hit by hyperinflation. Zimbabwe was hit by hyperinflation. And recently, Venezuela too was hit by hyperinflation in 2018. वो दैट मीन्स वेनेजुएला की जो करेंसी होगी तब खत्म गमस, उसका कोई वैल्यू नहीं रहा होगा उधर. वेनेजुएला वाज हिट बाय हाइपर इन्फ्लेशन इन 2018. समझ आई बात? समझ आई बात? अब मुझे एक बात बोलो, यू टेल मी वेनेजुएला कंट्री कहां पे है? वही सर वंस अदफर वंस बीएस साउथ अमेरिका. हाँ, कहां पे? शाबाश, वेरी गुड. आज रिश्ते कबील साउथ अमेरिका में कहां पे? इतना बहुत जरूरी है पता होना कि किस कंटिनेंट में है. साउथ अमेरिका है. इट इज द नॉर्दर्न कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका से हेरिकेन अच्छी है ना. ब्राजील है, उसके ऊपर है वेनेजुएला. चिली बन कन, चिली बन कन वो डाल पन आंसर वन तान गेनस में पकान. तुम जियोग्राफी मज पर्व मैप थमित ये तम कह अति वन सारद्रा नबर वो ये मैप क्या हावान. हियर इज वेनेजुएला है ना, ये नॉर्दर्न कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका है ना. साउथ अमेरिका है, ये ब्राजील है, ब्राजील के नॉर्दर्न में है वेनेजुएला. तो ऐसे याद रहता है. ये है कोलंबिया है, यहाँ से इक्वेडर है, यहाँ से पेरू है, बोलिविया, चिली गई पर अर्जेंटीना इन साइड चिली कोस्ट जहाँ से एल नीनो स्टार्ट होता है. जो आप पढ़ते हो जियोग्राफी में, एल नीनो यहाँ से लानीना है. तो दैट इज चिली कोस्ट हियर. दिस वेनेजुएला इज इन साउथ अमेरिका, नॉर्दर्न कंट्री साउथ अमेरिका. तो आपके लिए एक काम है, आपको सारा मैप याद होना चाहिए. जब जब मुझे किसी भी कंट्री का नाम आएगा वो परसों दिन, जिस जिस दिन कंट्री का नाम आएगा, आई विल टेल मी वेयर इज इंडोनेशिया है ना, आई विल टेल यू वेयर इज ऑस्ट्रेलिया, वेयर इज न्यूजीलैंड. तो प्लीज मैप गस पाया सुन इशफाक सर राइट पे. हालांकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है जियोग्राफी, लेकिन बीइंग के एस एस्पिरेंट मैप आपके दिमाग में होना चाहिए. कल से एक काम करना, जिसके पास 200 रुपये आज है, he will go to the bookseller, he will get map for himself. एक तो ये लाना है वर्ल्ड मैप, ये जो वर्ल्ड मैप, ये जो इंडियन मैप, इंडिया मैप है ना. तो वर्ल्ड मैप अपने दीवार पे चिपकाना आज ही अपने रूम पे, जहां पे आप बैठते हो. या तो शेंगे चुका सब गोडनिक नजर बीन मैपस पे वो नॉर्थ अमेरिका, एगो साउथ अमेरिका, एगो लेक विक्टोरिया, एगो नील, हो गई टर्की, सोरी पता आसन, एगो मेडिटेरियन. क्योंकि हर एक एग्जाम में मैप पे 2-2 क्वेश्चन आते हैं. वो पढ़ते इंसान को ठीक नहीं होते, वो ऐसे ठीक होते नजर पे. ये यहाँ से है. दिस हेल्प्स अ लॉट टू क्रैक. जब प्री ही क्रैक नहीं हुआ तो मेंस क्या लिखेगा? देयर आर एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन यूपीएससी एग्जाम जिनका बेचारों का प्री ही नहीं होता है. मेंस नॉलेज बहुत होती है, ऑप्शनल बहुत पढ़ा होता है. प्री क्वालिफाई करने के लिए मैप जानना बहुत जरूरी है. 2 क्वेश्चन बहुत होते हैं. थे वो याद तुई मैं एक उठक एट द रेट ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन नेवर नेरा. डन? समझ आइए ना बात? प्लीज ये काम करना मेरे लिए, मैप लाना अपने लिए, इसको नजर दिया करना हर दिन.
डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने दोस्त के साथ कभी कभार नजर देना, देखेंगे रशिया है किस किस कंट्री के साथ बाउंड्री इसकी ज्वाइन कर रही है, बहुत जरूरी है। देखो मैं अभी बोलूंगा क्योंकि आप फिर बोलते हो सर ये कैसे है, ये कैसे क्वालिफाई करते हैं। जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स आज होंगे ना सीरियस, जिनको कल एग्जाम प्री देना है फॉर इंस्टेंस जून में मई में, उनको आज ही पता है टर्की पे इस साल क्वेश्चन आएगा। इट वॉज हिट बाय अर्थक्वेक, इट हैज बीन इन न्यूज। सीरियस एस्पिरेंट को अब पता है टर्की इज इन न्यूज, एमसीक्यू एक आएगा प्रीलिम्स में, तो वो आज से ही टर्की के बारे में पढ़ेगा, किस सिस्मिक जोन में है। ओ शी इज बैक एट क्रीपिंग लेवल, वेरी गुड, है ना। तो वो सीरियस एस्पिरेंट को पता है मुझे टर्की के बारे में जानना है आज से ही, क्यों हुआ वहां पे अर्थक्वेक, किस जोन में फॉल करता है टर्की का जो लैंडस्केप है, कौन कौन से कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है, सीरिया, टर्की, बाकी कंट्रीज, समझ आई ना। उस पर डेफिनेटली यूपीएससी के प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन अब आएगा। फिर हम बोलते हैं यार कहां से क्वेश्चन बनते हैं, यहीं से बनते हैं। स्टूडेंट्स को पता होता है यहां से क्वेश्चन हिट होगा अब, है ना। लास्ट ईयर यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा था, उसके क्वेश्चंस आए, फिर बहुत एग्जाम्स में बच्चे उस तैयारी थे उस पाने के, यूक्रेन किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, रशिया किसके साथ क्यों अटैक किया, क्या है उधर, रीजन क्या है उसके पीछे। दीज बिकम हॉट टॉपिक्स फॉर योर एग्जाम, समझ आइए। यही फिर पूछेंगे कल, जियोग्राफी ऑप्शनल वाला होगा, इंटरव्यू जाने दे, इंटरव्यू देने जाएगा, he will be asked why Turkey was hit by earthquake, what are the reasons, as a geographer what could have been the reasons, क्यों वहीं पे आया ये, उसको तैयार रहना है इस चीज के लिए, समझ आइए ना बात। कंटिन्यू करें, इट्स 3, मुझे लग रहा है इतना ही पढ़ेंगे, क्या मैं बात क्या नहीं बहक ने कंप्रोमाइज बात से करे कहें वो मोद बच से, बाकी इंशाल्लाह कल करेंगे रेस्ट ऑफ द लेक्चर। लेकिन एक चीज करना, इन्फ्लेशन का टॉपिक किसी को मिस नहीं होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, हॉट टॉपिक ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये मिस गसन अत मुतलिक नॉलेज असल आसनी हर कस बच्चस। बेल वेल छा यमो ये थर्म्स, अल्लाह ब्लेस यू ऑल। और मेहनत किया करना और मैप लाना जरूरी, दोन दोन गो पिज्जा विज्जा खुन कहें, मैपस गो पन्निस रूमस में थावन। पत वन वेनेजुला इंडोनेशिया कहीं मैंने वही पाने इंडोनेशिया कह, अच्छा वियतनाम, हाँ हाँ। जरा ये आदिल कर रिकॉर्ड ऑफ कैप्चर वो, अच्छा ठीक, आने दे सर को, वो खुद करेगा ना क्योंकि